Now let us think. We have two plants. A. This is a plant B. Okay. Now let us say this plant A has a property. It is disease resistant. And plant B is not a disease resistant. Both are, let us think, pea plants. Now this pea plant A is disease resistant, but pea plant B is not disease resistant. Right? Now, in order to make this plant disease resistant, what I have to do? I have to take the gene from the plant A, which is responsible for disease resistant. I have to take the gene from plant A. I have to introduce this gene into plant B. When I introduce this gene into this plant, it will also become disease resistant. This process is nothing but biotechnology. So in biotechnology, we will take genes from one organism and we will introduce into another organism. We will manipulate the genes. We will play with the genes. That process is nothing but biotechnology. And biotechnology, its process and application, it's a separate lesson which we are going to study in incoming days. Now, in our session, we have applications of biotechnology. So, what is the use of biotechnology in day-to-day life? That things we are going to discuss in this lesson. This is very important. Every year in NEET examination, 2 questions will come, and this lesson is not that much of logical or not that much of theoretical. Okay, it's very easy, important lesson. Now, what we are doing generally, we are taking bacteria, okay, fungi, plants and animals, different plants. सर आपका माइक वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके Yes, sir. Now voice is clear to all. Yes, sir. Okay, so bacteria, fungi, plants and animals, what we are doing with them? Whose genes are manipulated? Okay, bacteria, fungi, plants and animals whose genes are manipulated for producing valuable products and services. Products and services, right, are called genetically modified organisms, or GMO. What is a genetically modified organism? Now I have given you the good example, plant A and plant B. So in the plant B, we are introducing the gene and making the plant B disease resistant. So we are saying that we are genetically modifying that plant. And after genetic modification, we obtain a plant which is called genetically modified plant. Okay. So for genetic modifications, we are using bacteria, fungi, plant and animals. We are manipulating their genes for our benefit. So that is the definition for what? Genetically modified organism. So for example, let me say coronavirus 1, coronavirus 2.
Now 3 is also came, we are saying Delta variant. Now why this different coronas are coming? What might be the reason? क्यों हो रहा है? Corona 1, Corona 2, Corona 3. Why like this way? Do you have any idea? Gene manipulation. जीन मैनिपुलेशन, वेरी गुड. तो जीन मैनिपुलेशन होने के वजह से COVID-1 इज कन्वर्टेड टू COVID-2. नाउ COVID-2 इज कन्वर्टेड टू डेल्टा वेरिएंट. ये जीन मैनिपुलेशन कोई कर रहे हैं या नेचुरली हो रहा है? Anybody doing the gene manipulation or it is occurring naturally? Naturally occurring. वेरी गुड. तो ये जीन मैनिपुलेशन वो ऑर्गेनिज्म में नेचुरली हो रहा है. जब जीन मैनिपुलेशन हम करते हैं, अगर जीन मैनिपुलेशन नेचुरली होता है तो वो अलग है, बट जीन मैनिपुलेशन जब ह्यूमन बींग्स करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? व्हेन यू डू जीन मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट, वी से इट एज व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी. और कोई भी ऑर्गेनिज्म में जब जीन का मैनिपुलेशन होता है तब उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. COVID-1, COVID-2, when you compare, COVID-2 is genetically modified when compared to that of COVID-1. Okay, so now हम आज के डेट पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपने अनुकूल उसको हम बना सकते हैं. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का ये डेफिनेशन. तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस क्या है, मैं एक एक से आपको लिख के बताऊंगा. ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन आपको समझ में आया? Yes, sir. जेनेटिकल मॉडिफिकेशन में हम वायरस को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस इसलिए यूज नहीं करते कि वायरस जो है एसेलुलर है. एसेलुलर मतलब ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है. तो इसलिए जनरली जीन मैनिपुलेशन हम या तो बैक्टीरिया में करेंगे, फंगी में कर सकते हैं, प्लांट में कर सकते हैं और एनिमल्स में, बट वायरसेस में पॉसिबिलिटी नहीं है. तो बायोटेक्नोलॉजी में हम वायरस का यूज नहीं करते हैं, जनरली बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट एंड एनिमल. सुनो, ये बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन से, क्या ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इससे फायदा है, बेनिफिट है, वो पॉइंट्स को आपको याद रखना. तो बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी जो है डायग्नोस्टिक्स में यूज होता है. Diagnostics. What is the meaning of diagnostics? To know the disease. Okay, suppose we are getting COVID, we are doing swab test. How the kit of the swab test is prepared? With the help of biotechnology. So with the help of biotechnological methods, we can identify the disease. That is known as diagnosis. So biotechnology is used in the diagnosis of many diseases. It is also used in making therapeutics. Medicines. Some important medicines like insulin, etc., are made by using biotechnology. Biotechnology also used in making genetically modified crops. Genetically modified crops. Nowadays, you can see many cottons varieties which are genetically modified. We say BT cotton. We have different types of cottons that are made by biotechnology. Food processing. We are also using biotechnology in food processing. Okay, how to preserve the food, how to use the food for long period of time, all that things. We are also using biotechnology for waste treatment. Polluted water, how to purify it. By using biotechnological methods only we are purifying. Biotechnology is also used in energy production. Biogas, production of biogas is also a biotechnological method. Okay, so these are some of the applications of the biotechnology, right? Now, there are 3 research areas of biotechnology. You have to remember this not sequentially, you have to remember all this. So these are the different applications of our biotechnology. Now we will study one after another. Application of biotechnology in agriculture, application of biotechnology in poultry industry, application of biotechnology in making medicines, applications of biotechnology in diagnostics. All that things we have to study serially.
These are few applications. Now, Sir. biotechnology के 3 research areas हैं. Okay, you have to remember these 3 research areas. First research area है providing best catalyst in the form of GMO, genetically modified organism or enzyme. It means we can do the research how to make genetically modified organisms or different types of enzymes. That is the first research area. And we can also do the research in creating optimal conditions for catalyst to act. You remember this? Okay. Next research area is downstream processing. Now, let us take, I have to make the enzyme. I am doing the research how to make the enzyme. Second research, after making the enzyme, I need the enzyme. To make the enzyme, I need some conditions: temperature, pH, acidity. So if I maintain proper conditions, then only my enzyme can be formed, or a genetically modified organism can be formed. So in that area, I am doing the research. Third, after the formation of enzyme, whether it is working or not, whether it is pure or not, whether it is harmful, whether it is having harmful effect or not, that we are doing in downstream processing. Okay, all the things we are doing in downstream processing. So these are the 3 critical research areas of biotechnology. Just you mug up and remember them. 3 critical research areas, right? I'm audible clearly, no? Yes, sir. Yes, sir. Now, applications of biotechnology in agriculture. This is the first heading. एग्रीकल्चर में अपने बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, क्या एप्लीकेशन है, वो हम देखते हैं. अब फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, to increase food production we have 3 options. जनरली अभी अपने पास 3 ऑप्शंस है फूड प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए. वो 3 ऑप्शंस क्या है? एक ऑप्शन है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? बाय यूजिंग सम केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वी आर डूइंग द एग्रीकल्चर. By using the chemicals and pesticides, we can increase the agricultural yield. That is known as what? Agrochemical based agriculture. Second type is organic culture. What is organic culture? In organic culture, we are using all the natural methods of agriculture, green manure. Okay, we are using dung as a fertilizer. All the natural methods we are using, and by the organic culture also we can increase the food production. By agrochemical based agriculture also we can improve the food production. Third option is genetically engineered crop based agriculture. Okay, now agrochemical based agriculture अगर हम यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये केमिकल्स जो हैं वो मतलब प्लांट के क्रॉप का यील्ड तो बढ़ाएगा, बट उसके बहुत सारे दुष्परिणाम बॉडी पे पड़ेंगे. तो एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर उतना ठीक नहीं रहेगा यूज करने के लिए.
ऑर्गेनिक कल्चर जो है पुराना मेथड है, ये अच्छा मेथड है बट पुराना है, इससे ये सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, तो आज के दुनिया में जो यूज किया जा रहा है जेनेटिकली क्रॉप एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं कुछ लोग, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कुछ ही लोग कर रहे हैं, बट हम जनरली एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये तीन ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, इनमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन है थर्ड वन। बट इसमें सबसे अच्छा क्वालिटी का फूड किसमें मिलता है? ऑर्गेनिक कल्चर। क्वालिटी व्हेन यू टेक ऑर्गेनिक फूड इज वेरी गुड। जो भी फूड मटेरियल ऑर्गेनिक कल्चर से आता है दैट विल बी वेरी वेरी गुड when compared to agrochemical agriculture and genetically engineered crop based agriculture. Okay, so genetically engineered crop based agriculture से हम 10 to 20 टाइम ज्यादा yield ले सकते हैं प्लांट से। So developed countries are following third method, we are not following the third method. Now in India during some period of time there was green revolution. आपने नाम सुना होगा green revolution. Okay, so what is this green revolution means? In 1940 to 1966 ग्रीन रेवोल्यूशन चला था दुनिया भर में। नॉर्मन ई बोरलैग ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है। नॉर्मन ई बोरलैग is considered as what? Father of green revolution. Green revolution occurred in between 1940 to 1960. In India, MS Swaminathan has started green revolution and he is considered as father of Indian green revolution. Norman Borlaug is considered as father of green revolution. William Goud was the scientist who has given the name green revolution. So green revolution होने का मेन रीजन ये था कि 1940 और 1960 के टाइम पे पॉपुलेशन हद से ज्यादा था और प्रोडक्टिविटी कम था, तो अब लोगों को खाना भी मिलना मुश्किल हो रहा था। तो उस सिचुएशन में नॉर्मन बोरलैग साइंटिस्ट ने सेमी ड्रॉप डिसीज रेसिस्टेंट व्हीट और मेज को बनाया था और इनका जो यील्ड था 10-20 टाइम्स ज्यादा था और उस टाइम के पॉपुलेशन को खिलाने के लिए उपयुक्त था। वो सिचुएशन इंडिया में भी था, तो MS स्वामीनाथन ने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हो रहा था जनरली एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का ही मतलब एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ही चालू था। उससे पहले 1940 से पहले हम लोग खेती कैसा करते थे? हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करते थे, मतलब अपने जो नॉर्मल नेचुरल मेथड्स हैं उसी से ही हम एग्रीकल्चर करते थे, जिसके वजह से जो फसल उगता था वो बहुत सारे पॉपुलेशन को सफिशिएंट नहीं था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद यही था कि किसी भी तरह से यील्ड को बढ़ाए और यील्ड को बढ़ाने के लिए एग्रो केमिकल मतलब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इनका यूज किया गया और क्रॉप का भी यील्ड बढ़ा। बट इसके भी दुष्परिणाम हैं क्योंकि ये जो एग्रो केमिकल्स होते हैं वो सब लोग खरीद नहीं सकते, कॉस्टली होते हैं और लगातार ये केमिकल्स यूज करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो भी बिगड़ जाता है, मतलब एक 10-20 साल के बाद वो जमीन बंजर हो जाती है। तो इस वजह से फिर साइंटिस्ट मतलब जैसा जैसा दुनिया बदलते गया 1940 से 60 1980s में सोचने लगे कि हम भाई एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ही करते रहेंगे तो फिर जमीन ही नहीं बचेगा एग्रीकल्चर करने। तो फिर उससे बाद ऑर्गेनिक कल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, राइट? जहां तक पॉइंट्स क्लियर है? ओके, now once again, father of green revolution Norman E. Borlaug, father of Indian green revolution MS Swaminathan, the green revolution coined by William Goud GAUD, right? Now organic farming, so now organic farming में जो है
We use green manure, which is made up of leaves of different types of plants. And we use biological pest control. Biological pest control का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी फसल हो उस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट उस फसल को खा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ दवाई मारते हैं ताकि इंसेक्ट और पेस्ट ना आए। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, दवा विवा नहीं मारते, कुछ बर्ड्स को छोड़ देते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को वो खा ले। ये ऑर्गेनिक कल्चर का सिस्टम है। तो ऑर्गेनिक कल्चर के क्या फायदे हैं? ऑर्गेनिक कल्चर का ये फायदा है कि जो ऑर्गेनिक कल्चर से जो उगाया गया जो फूड मटेरियल है, जैसा राइस है या ग्रेप्स है या व्हीट है या कोई भी फूड है, उसका जो मिनरल और विटामिन कंटेंट जो होता है ज्यादा होता है। मान लो मैंने दो राइस लिए, एक जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकाला गया, दूसरा जो है एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर से निकाला गया। तो दोनों राइस में डिफरेंस क्या रहेगा? जो ऑर्गेनिक कल्चर का राइस है वो विटामिन रिच रहेगा, मिनरल रिच भी रहेगा, टेस्ट भी उसका अच्छा रहेगा। ओके, और वो टॉक्सिक फूड से, मतलब उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं होते। और उसका शेल्फ टाइम का मतलब होता है कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट आप अगर मतलब अगर आप पेड़ से निकालते हो कितने दिन वो जीवित रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने टमाटर है, टमाटर 7 दिन तक रह सकते हैं अच्छा कंडीशन में, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड जो है उसका जो शेल्फ टाइम जो होता है वो ज्यादा होता है। ये जो है स्पेशलिटीज है अपने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के। बट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सबसे पॉसिबल नहीं है और उसका यील्ड भी उतना ज्यादा नहीं होता है, बट ऑर्गेनिक फूड अच्छा है। So we have organic food shops also in different areas. So many people will prefer organic food for eating. Okay, right. Next is the gene which is transferred to other organisms. The gene which is transferred to other organism by genetic engineering is called transgene. Okay, so now this is organism A, this is organism B. इसमें का जीन जो है निकाल के इसमें ट्रांसफर करना by genetic engineering. We are using genetic engineering to transfer gene from one organism to another organism. ये जीन को ही कहा जाता है ट्रांसजीन, राइट? दिस जीन इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसजीन। अब ये है, ये बी है, इसमें ट्रांसजीन है, यहां से यहां हमने डाल दिया। ओके, द ऑर्गेनिज्म आर द प्लांट विथ ट्रांसजीन। जो भी प्लांट या एनिमल में ये ट्रांसजीन होता है is called transgenic plant or animal. If a plant contains transgene, we say transgenic plant. If an animal contains transgene, we say it as transgenic animal. So we are making transgenic plants, we are making transgenic animals. Now you see dogs. You have many different dogs. They are not natural dogs. They are transgenic dogs. They are made by transfer of genes. Okay. So this definition you have to remember: transgenic animal, transgenic plant. Up till these points are clear? Once you say me.
यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स के क्या बेनिफिट्स है? बेनिफिट्स ऑफ जीन मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन करने से हमें क्या फायदा मिलता है? ओके। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एक नॉर्मल प्लांट है और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है एबायोटिक स्ट्रेस को सहने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है, वो खुद से ही नेचुरली वो स्टेबल होता है। और थर्ड है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं, ये भी एक क्वालिटी होती है। और इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब विटामिन और मिनरल कंटेंट। ओके। और इनका ईल्ड भी ज्यादा होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जो ईल्ड होता है वो ज्यादा होता है। ये सारे बेनिफिट्स है अपने जीन मॉडिफिकेशंस करने के या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम शो करने से। ओके। नाउ लेट अस सी another example, GMC, genetically modified crops. Genetically modified crops. Now, what is genetically modified crop means? Plants with desirable characters created by gene transfer. Okay, are called GMC. Now, generally plants में अगर जीन ट्रांसफर करना है, ओके, प्लांट्स में अगर जीन ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये एक जीन है। इस प्लांट को प्लांट ए है, प्लांट बी है। ये प्लांट ए का ये जीन जो है इसमें डालना है। डालने के लिए हमें एक एजेंट चाहिए जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से, अब ये चंद्रपुर में है, इसको नागपुर जाना है। चंद्रपुर से नागपुर जाने के लिए कुछ वाहन चाहिए। दैट वाहन वी आर सेइंग इट एज वेक्टर। So now when you transfer gene from one plant to another plant, for plant gene transfer, we commonly use the vector, a bacteria. The name of that bacteria is Agrobacterium tumefaciens. Right? Remember this. Agrobacterium tumefaciens. It is used as vector. It is used as vector for obtaining transgenic plants. ओके, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। मतलब एक प्लांट से जीन को दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करना है तो वेक्टर की जरूरत पड़ती है, और प्लांट जीन्स ट्रांसफर्स के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को यूज करते हैं। एनिमल जीन ट्रांसफर्स के लिए ई कोलाई को जनरली यूज किया जाता है। ओके, सो प्लांट जीन ट्रांसफर को व्हाट वी आर यूजिंग ए बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। क्लियर? राइट।
नाउ जब हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को देखते हैं वो कैसा होता है, ये है अपना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, एक ही डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। उसके साथ साथ कोई भी बैक्टीरिया में जो है एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे कहा जाता है प्लास्मिड। व्हाट इज प्लास्मिड? प्लास्मिड इज एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। 1 minute. Okay, now this is the plasmid. ये प्लास्मिड का नाम है टीआई प्लास्मिड, राइट। ये प्लास्मिड का नाम क्या है? टीआई प्लास्मिड। तो टीआई प्लास्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एटी is used as vector, right? What is plasmid? Extra circular double stranded self replicating DNA। ये बहुत सारे हर एक बैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसे कहा जाता है प्लास्मिड। रिमेंबर द डेफिनेशन। ओके, What is 80? any confusion you can ask me. Sir, what is 80? What is 80 there. 80 means वो बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ओके। राइट, नाउ बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स भी बनाए गए। Insect resistant transgenic plants are made with the help of biotechnology. Examples are BT cotton, this is insect resistant. BT potato, this is also insect resistant. Okay, BT rice and soya bean, these are also insect resistant. Okay, BT means Bacillus thuringiensis. This is the name of the bacteria. Bacillus thuringiensis is the name of the bacteria. Now this BT genes, this bacteria Bacillus thuringiensis के genes जब हम कॉटन प्लांट में डाल देते हैं तो उस कॉटन प्लांट को कहा जाता है बीटी कॉटन। अगर हम पोटैटो प्लांट में डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं बीटी पोटैटो, बीटी राइस, बीटी सोयाबीन। ओके, नाउ अब ये बेसिलस thuringiensis के जीन्स क्यों हम प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका भी एक रीजन है। ये जो बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया हैं, ओके, ये बैक्टीरिया कुछ प्रोटीन्स को बनाता है। ये जो कुछ प्रोटीन्स बैक्टीरिया जो बनाता है, ये प्रोटीन्स जो है इंसेक्ट्स को किल करता है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज दिस इज माय प्लांट, व्हाट आई हैव डन, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड बीटी जीन। अब ये प्लांट क्या हो गया? बीटी प्लांट।
व्हाट इज बीटी प्लांट? जो प्लांट में बीटी जीन है वो बीटी प्लांट। ये बीटी जीन मुझे कहाँ से मिला? ये बैक्टीरिया है, बेसिलस thuringiensis। इसमें से मैंने डीएनए है इसका, इसके डीएनए में से मैंने एक सेगमेंट को काट के इसमें चिपका दिया। आई हैव कटेड दिस सेगमेंट एंड एडेड हियर, नाउ इट हैज बिकम बीटी प्लांट। अब ये बीटी प्लांट को मान लो कोई इंसेक्ट आके इस प्लांट को खाने लगता है, इसके पत्तों को। अब ये बीटी जीन एक प्रोटीन को बनाएगा, राइट? अब ये इंसेक्ट जब ये पत्ते वित्ते सब खा लेता है तो बीटी प्रोटीन भी उसके पेट में चले जाता है, और ये प्रोटीन इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होता है, मतलब इंसेक्ट को वो किल कर देता है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? लॉजिक यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो ये इंसेक्ट जब पत्ते या कोई भी प्लांट का पार्ट को वो खाता है तो वो ये बीटी जीन्स उसके अंदर जाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, और प्रोटीन जो है हानिकारक है इंसेक्ट के लिए, प्लांट के लिए नहीं। ये इंसेक्ट को मार देता है। अब ये जो बीटी का प्लांट अगर मैं मेरे एग्रीकल्चर में लगाऊंगा तो मुझे फिर दवाई यूज करने की जरूरत नहीं है। हम दवा क्यों यूज करते हैं? इंसेक्ट से प्लांट को बचाने के लिए। दवाई के लिए अलग से खर्चा होता है। अगर मैं खुद से बीटी प्लांट्स को ही लगा लिया तो इंसेक्ट्स प्लांट को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाएंगे मरेंगे। ओके, अंडरस्टूड? नो? यहां तक समझ में आया इसका बीटी का कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ some strains of BT, BT means Bacillus thuringiensis। ये Bacillus thuringiensis के कुछ strains produces proteins that kill certain insects। सभी insects को नहीं, कुछ insects को, such as Lepidopterans। Lepidopterans are some group of insects। Okay, Coleopterans, these are also some group of insects। And Dipterians, these are also some group of insects, right? ये डिप्टेरियंस में फ्लाइस और मस्किटोस आते हैं, हाउस फ्लाइस और मस्किटो, मच्छर। When you take Lepidopterans, इसमें दो इंसेक्ट्स है, टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म। टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म, ये एक प्रकार का इंसेक्ट है। ओके, और अपने कोलियोप्टेरन्स में आते हैं बीटल्स, ये भी एक प्रकार के इंसेक्ट्स है। यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो इतने सारे इंसेक्ट्स को बीटी प्रोटीन किल कर सकता है। कोलियोप्टेरन्स, लेप्टोप्टेरन्स, डिप्टेरियंस, टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मीवॉर्म, बीटल्स, फ्लाइज एंड मस्किटोस। ओके, you take screenshot of this point। यहां तक क्लियर है? Till these points are clear? Please respond।
Okay. Now, next thing is that ये जो बीटी बैक्टीरिया है, ओके, ये जो बीटी बैक्टीरिया है, बीटी फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स। ये बीटी बैक्टीरिया जो है कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल्स को बनाता है ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। वो जैसा जैसा ग्रो करते रहता है वो कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स को बनाता है। ओके, ये प्रोटीन क्रिस्टल्स में क्या होता है? दिस क्रिस्टल्स कंटेन इंसेक्टिसिडल प्रोटीन। इंसेक्टिसिडल टॉक्सिन। तो ये प्रोटीन क्रिस्टल्स के अंदर इंसेक्ट्स को मारने वाला केमिकल होता है। टॉक्सिन मतलब हार्मफुल केमिकल। ओके, नाउ ये बीटी कॉटन, बीटी बैक्टीरिया के अंदर ये क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल्स में इंसेक्टिसिडल प्रोटीन हो, इंसेक्टिसिडल टॉक्सिन या इंसेक्टिसिडल प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन से बीटी बैक्टीरिया को कुछ हानि नहीं होता है, क्योंकि जब बीटी बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटीन रहता है तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही ये इंसेक्ट के अंदर चले जाता है तो एक्टिव हो जाता है। ये लॉजिक यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये लॉजिक समझना है। ये बीटी बैक्टीरिया है, ये उसका प्लाज्मिड है, ये उसका जीनोम है। अब ये जो बीटी बैक्टीरिया है इंसेक्टिसिडल कुछ क्रिस्टल्स को बना रहा है, क्रिस्टल्स बना लिया, राइट। ये क्रिस्टल्स के अंदर क्या है? क्रिस्टल्स कंटेन इंसेक्टिसिडल प्रोटीन और टॉक्सिन। तो इसके अंदर इंसेक्ट्स को मारने वाला एक केमिकल है। ये केमिकल कैसा है? ये केमिकल जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, राइट, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो अभी यही एग्जाम्पल, यही आप ध्यान में रखो। अब मेरा बीटी प्लांट है, तो बीटी प्लांट में बीटी जीन्स होने के वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन क्रिस्टल्स इसके बॉडी के, प्लांट के बॉडी के अंदर बन गए। बात समझ में आ रहा है? योर अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रेस्पॉन्ड। सर रिपीट करो। क्रिस्टल्स के अंदर क्या है? क्रिस्टल्स के अंदर एक प्रोटीन जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंसेक्टिसिडल प्रोटीन। इंसेक्टिसिडल प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? इंसेक्ट्स को मारने वाला प्रोटीन। अंडरस्टूड नो? इंसेक्टिसिडल प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? इंसेक्ट्स को मारने वाला प्रोटीन। ये किस में बन रहा है? ये प्लांट के बॉडी में बन रहा है। प्लांट के बॉडी में क्यों बन रहा है? क्योंकि वो प्लांट बीटी प्लांट है। क्योंकि वो प्लांट कौन सा प्लांट है? बीटी प्लांट है। बीटी प्लांट का मतलब क्या हुआ? जिसमें बीटी जीन्स है। ओके, जो प्लांट में बीटी जीन्स है, बेसिलस तुरंजेंसिस के जीन्स हैं, वो बीटी प्लांट है। बीटी प्लांट क्या बनाएगा? बीटी प्लांट जो है इंसेक्टिसिडल प्रोटीन बनाएगा। और ये इंसेक्टिसिडल प्रोटीन जो है प्लांट के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि प्लांट को ये कुछ लॉस नहीं कर सकता। ये जब इंसेक्ट के अंदर जाता है, ये प्रोटीन जब इंसेक्ट के अंदर जाता है, ये एक्टिवेट होता है और इंसेक्ट को किल करता है। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड ऑल?
Okay. Now that only I am writing. Bt toxin is in inactive form. But when it enters into insect, it is converted to active form. Clear? It is converted to what? Active form due to alkaline pH of gut. ओके, इंसेक्ट के एलिमेंटरी कैनल के अंदर अल्कलाइन पीएच होने के वजह से, गट का मतलब क्या होता है? एलिमेंटरी कैनल। तो इंसेक्ट के एलिमेंटरी कैनल के अंदर अल्कलाइन पीएच होने के वजह से ये इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू अल्कलाइन पीएच। क्लियर? प्लीज रेस्पॉन्ड। हर्ष वंस रेस्पॉन्ड। ओके, सो दिस बीटी टॉक्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है। जब इंसेक्ट के पेट के अंदर जाता है, उसके पेट के अंदर अल्कलाइन पीएच होने के वजह से एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेट होके क्या करता है देखेंगे अब। एक्टिवेटेड टॉक्सिन binds to midgut epithelial cells। ओके, तो ये जो एक्टिवेट होके इंसेक्ट के बॉडी का एलिमेंटरी कैनल में फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है, तो मिडगट के एपिथेलियल सेल्स को बाइंड करता है। एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू मिडगट एपिथेलियल सेल्स। बाइंड करके क्या करता है? उस सेल्स पे पोर्स क्रिएट करता है, क्रिएट्स पोर्स। राइट, बाइंड किया और उस एपिथेलियल सेल्स को बाइंड किया, बाइंड करके उसमें पोर्स को क्रिएट किया। ओके, पोर्स क्रिएट होने के वजह से सेल जो है स्वेल होता है। हाउ द सेल विल बिकम? This causes swelling of cells। ओके, जिसके वजह से सेल स्वेल होता है, swelling of cells and lysis। lysis मतलब breaking of cells। ओके, so सेल स्वेल हो गए और lysis भी हो गए, and finally causes death of the insect। and finally causes what? Death of the insect। so in this way our BT toxin is acting। once again I will repeat, listen carefully। ये जो BT जो है, BT टॉक्सिन को बनाता, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन बनाता है। ये इंसेक्टिसिडल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब वो बैक्टीरिया के अंदर होता है या प्लांट के अंदर होता है। जब कोई भी इंसेक्ट बीटी प्लांट के पत्तों को अगर खाता है तो कोई भी इंसेक्ट जब बीटी प्लांट के पत्तों को या किसी भी पार्ट को वो खाता है, ये जो इनएक्टिव फॉर्म वाला जो प्रोटीन है उसके पेट में या उसके एलिमेंटरी कैनल में अल्कलाइन पीएच होने के वजह से एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होके ये टॉक्सिन जो है, ये प्रोटीन जो है, मिड गट के एपिथेलियल सेल्स को बाइंड करता है। क्योंकि इंसेक्ट के एलिमेंटरी कैनल में 3 पार्ट्स होते हैं, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो ये मिडगट के एपिथेलियल सेल्स को बाइंड करते हैं और उस सेल्स के ऊपर छेद बना देते हैं, जिसके वजह से सेल्स जो स्वेल होते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सेल्स इवेंचुअली स्वेल होकर लाइसिस होने के वजह से धीरे धीरे इंसेक्ट भी मर जाता है। तो ये मैकेनिज्म है अपने बीटी टॉक्सिन का। ओके, दिस यू अंडरस्टूड? मींस यू से आई विल प्रोसीड।
This you understood the mechanism? Yes, sir. Right. Now, ये बीटी टॉक्सिन्स जो है are insect group specific. This is very important point. इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? ये बीटी टॉक्सिन कुछ इंसेक्ट्स पे ही एक्ट करते हैं, सभी इंसेक्ट्स पे एक्ट नहीं कर सकते. ओके, नाउ बीटी टॉक्सिन जो है इज कोडेड बाय CRY जीन, क्राई जीन, क्रिस्टल जीन. ओके, क्रिस्टल जीन जो है बीटी टॉक्सिन को बनाता है. क्योंकि व्हाट इज टॉक्सिन? इट इज एक्चुअली अ प्रोटीन. हाउ प्रोटीन इज फॉर्म्ड? Gene means DNA, DNA will form RNA, RNA will form protein. Okay, so this point also you have to remember that BT toxin is formed due to cry gene. Cry मतलब crystal gene. Okay, now ये तीन टाइप्स के मतलब दो तीन टाइप्स के cry genes है. एक है cry gene 1AB, sorry 1AC. दूसरा है क्राइजीन 2, क्राइजीन 2AB. तीसरा है क्राइजीन 1AB. ये तीन टाइप्स के क्राइजीन्स हैं. क्राइजीन 1AC, क्राइजीन 2AB, क्राइजीन 1AB. ये क्राइजीन 1AC और AB जो है कंट्रोल्स, ये किसको कंट्रोल करते हैं? इनके जो प्रोटीन्स होते हैं ये कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं. कॉटन बॉलवर्म्स ये एक प्रकार के इंसेक्ट्स है. ओके, और ये क्राइजीन 1AB जो प्रोटीन बनाता है वो एक कॉर्न बोरबर इंसेक्ट को कंट्रोल करता है. कॉर्न बोरबर, कॉर्न बोरर, सॉरी बोरर. ओके, दिस मच यू हैव टू रिमेंबर. Okay, so now can you say why inactive toxin, how it is converted into active form? What is the main region of conversion? Alkaline pH. Alkaline pH. So due to the alkaline pH only, inactive toxin is converted to active form, and after its activation it binds to epithelial cells of midgut and it will cause pores, lysis, swelling and automatically death of the insect, right? So this is BT cotton, very very important from NEET point of view. What is the meaning of BT? Bacillus thuringiensis. Very good, very good. Last topic is AT, Agrobacterium tumefaciens. Right now, मैंने already I have said you that this Agrobacterium tumefaciens is used as plant vector. Now this Agrobacterium tumefaciens bacteria it generally lives in soil. It has its own genome, bacterial genome. It is also having a plasmid, extra DNA. This is plasmid, extra DNA.
ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम में जो प्लास्मिड है उसे कहा जाता है टीआई प्लास्मिड, टीआई प्लास्मिड। क्लियर? टीआई प्लास्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। ओके, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड, राइट। नाउ ये टीआई प्लास्मिड में एक जीन होता है, टीआई प्लास्मिड में एक जीन होता है जिसका नाम है, टीआई प्लास्मिड का एक जीन ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसको कहा जाता है टीडीएनए। व्हाट यू से? टीडीएनए, or it is also called transfer DNA। क्लियर? ध्यान से सुनो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम में उसका जीनोम है, साथ ही साथ प्लास्मिड है, एक्स्ट्रा डीएनए। एक्स्ट्रा डीएनए जो प्लास्मिड है उसका नाम है टीआई प्लास्मिड। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड में एक जीन है जिसको हम कहते हैं टीडीएनए। अब ये जो एटी है ये क्या करता है? ये एटी बैक्टीरिया जो है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया, जब प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, काजेस क्राउन गॉल डिसीज। इन डाइपॉट्स, ये डाइपॉट्स पार्ट प्लांट्स में एक क्राउन गॉल डिसीज को कॉज करता है। क्राउन गॉल डिसीज क्या है? ये मान लो ये डाइपॉट है, ये उसके रूट्स है, ओके। रूट्स के बिल्कुल ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर हिस्से में ट्यूमर्स को बना, ओके। इसको हम कहते हैं ट्यूमर, इसे कहते हैं क्राउन गॉल। क्लियर? ये जो रीजन है रूट से बिल्कुल ऊपर वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं कॉलर रीजन। क्लियर? ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया है, डाइकॉट प्लांट्स में कॉलर रीजन पे ट्यूमर्स को बनाता है, जिसके वजह से डाइकॉट प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता, प्रॉपरली फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाता, ओके। सो ये डिसीज को कहा गया है क्राउन गॉल डिसीज, राइट। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, टीआई प्लास्मिड, और ये क्राउन गॉल डिसीज। नाउ क्राउन गॉल डिसीज is due to tDNA present in dash plasmid। बताओ। Crown gall disease is due to tDNA present in dash plasmid। tDNA कौन से प्लास्मिड में है? Very good। Crown gall disease is due to the tDNA present in TI plasmid। Clear? Right। नाउ ये जो टीआई प्लास्मिड है ये सबसे बड़ा प्लास्मिड है। टीआई प्लास्मिड जो है ये सबसे बड़ा प्लास्मिड है। साइज ऑफ टीआई प्लास्मिड is very big, 10 to 30 kilo base pairs। It is largest plasmid। ये जो है सबसे बड़ा प्लास्मिड है, so I'm saying largest plasmid, so we say it as मेगा प्लास्मिड। बड़ा प्लास्मिड है इसलिए हम इसको बोलते हैं मेगा प्लास्मिड, ओके।
Now, the size of Pi plasmid is reduced. जनरली हम लेबोरेटरी में Pi plasmid का साइज को हम रिड्यूस करते हैं. साइज ऑफ Pi plasmid is reduced and oncogenes are removed. oncogenes मतलब ट्यूमर को काज करने वाले जीन्स. ओके. During the construction of Pi plasmid वेक्टर. मतलब ये Pi plasmid को हम वेक्टर के जैसा यूज कर रहे हैं. तो अगर यूज करना है तो उसमें जो क्राउन गॉल डिसीज को काज कर रहा है pDNA, उसको निकाल देना. जब हम उसको निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली साइज ऑफ द डीएनए जो है कम हो जाए, तब हम उसको एज ए वेक्टर यूज कर पाएंगे. ओके. ये थोड़ा इंफॉर्मेशन याद रखो. ओके. एनी कंफ्यूजन? Any confusion you can ask me.